Hello, dear students. Today chapter start 14th. Okay. This chapter name respirations in plant. Okay. And let us start this chapters according to NCRT. All of us breathe to life. Why is the breathe so essential to life? What happen when we breathe? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, who? It's mean क्या सभी जो जीव हमारे यहाँ रह रहे हैं या छोटे हों या बड़े हों, क्या वो जीवन के लिए सांस लेते हैं? यदि ऐसा है तो क्यों? एंड क्या जो जीव हैं वो टू टाइप्स के हैं, या तो इंक्लूडिंग ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, या बहुत छोटे जीव या माइक्रोब्स हो सकते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज सच एज एक्टिविटीज absorptions, transport, movement, reproduction, and other activities, or even breathing. Does all this energy from come? ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा कहाँ से आती है? We know we eat food for energy. क्या ऊर्जा भोजन से मिलती है? But who this energy taken from food? यह ऊर्जा खाने से प्राप्त होगी. And who is this energy utilized? Okay. Many types of questions asking for NCRT books on this paragraph. Okay. Okay. Who is this energy utilized? Okay. Who is this energy taken from food? Yes. Energy get from food materials. Given the energy, what some conditional case? Okay. Who is this energy utilized? Yes, this energy utilized to complex food materials oxidation process form on in living cells. Okay. Do all food give the some amount of energy? क्या सभी प्रकार के जो सबस्ट्रेट होते हैं फूड्स के वो एनर्जी समान देते हैं? नो. No. All the food materials give the energy what some conditional case. Okay. Okay. Do plant eat? It's mean क्या पौधे भोजन खाते हैं या करते हैं? No. Where do plant get their energy from? Do plant eat? No. Plant is the synthesis of process. Plant do not eat the food, but physical energy convert to an chemical energy with the help of enzyme and cell organ. This process is called photosynthesis. Okay. Microorganisms and other energy requirements, do they eat food? Okay. Yes, all the micro and large living molecules and living cells require the energy product.
the form of different case. Okay. You may wonder at the several questions rise above. They may some to be very disconnected. What in the really of the process of the breathing very much conduct to the process to release of energy from food. Let us try to understand how this happens. इसको समझने के लिए हमको निम्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। वो इस तरीके से हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेट अस सी। ओके, ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसिंग is obtained by oxidation some micromolecules that we sell food. ओके, जो भी जीवन के लिए आवश्यक है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इन क्रियाकलाप को ऊर्जा जो मिलती है वो सेल रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग मिलती है। एंड जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स इज द ऑक्सीडाइज प्रोसेस इज कंप्लीट फ्रॉम द प्रोड्यूस एनर्जी फॉर्म। ओके, ओनली green plants and cyanobacteria can prepare the one food by the process of photosynthesis. They trap light energy to convert the chemical energy that is stored in the bond of carbohydrate. जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं या साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल हैं वह भोजन तो बनाते हैं, लेकिन वह भोजन फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान बनाते हैं। इस क्रिया के लिए ट्रैप द एनर्जी बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इस तरीके से ये कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो भी प्रोडक्शन इस क्रिया के दौरान बनता है उस प्रोडक्शन को हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ओके, सच एज ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ओके, वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट टू नॉट ऑल सेल। जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनकी सभी ऑर्गेन हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, सच एज टिश्यू एंड ऑर्गेन photosynthesis only cell containing chloroplast। हरे पौधे में वे भाग ओनली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिन पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, दैट आर मोस्ट ऑफ्टन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लीफ पर या प्लांट ग्रीन पार्ट पर एक सुफिशिएंट लेयर के पास पाए जाते हैं, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। हैंस एवन इन ग्रीन प्लांट और अदर ऑर्गेन्स टिश्यू और सेल दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। जो पौधे के हरे भाग नहीं होते हैं वह ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान ऊर्जा को ग्रहण करते रहते हैं। फूड हैज़ टू बी translated या translocated to all non-green parts. Okay, animals are heterotrophic, they often food from plants or indirectly carnivorous. Saprophyte like a fungus or depend on dead and decaying materials. जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं लिविंग बॉडी मटेरियल्स। इट्स मीन जब कोई लिविंग की डेड हो जाती है या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या गंदे या गले सड़े जो पदार्थ होते हैं वहाँ पर हम सेप्रोटाइप को आइसोलेट कर सकते हैं। इट्स मीन सेप्रोटाइप डिपेंड ऑन द डिकिंग एंड डेड मटेरियल्स।
ठीक है, और ये डेड मटेरियल्स किसके होंगे, लिविंग बॉडी के हो सकते हैं। ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज is that ultimately all the food that is respired for the processes come from photosynthesis. This chapter deals with cellular respirations. What are the cellular respirations? Cellular respirations, the break of the carbon-carbon bond of complex compound through oxidation within the cell, leading to release of considerable amount of energy, is called respirations. Okay, this cellular respirations is completed cytoplasm and mitochondria cell organs. Okay, photosynthesis is take place within the chloroplast eukaryotes, where the breakdown of complex molecule to yield energy take place in the cytoplasm and mitochondria. जो भी लिविंग होते हैं उनमें यह क्रिया जो होती है वह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार की क्रिया संपन्न हो पाती है। ठीक है, ओके। द ब्रेकिंग ऑफ सी बॉन्ड, इट्स मीन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है यहाँ पर। ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन होता है विद इन द सेल के अंदर, सेल में, लीडिंग टू रिलीज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। और यहाँ से जो भी हमको मिलेगा वो रेस्पिरेशन की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के सबस्ट्रेट क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेशन के सबस्ट्रेट जो है वो है प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो यूज एज द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट अंडर द स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ओके, respiration is two types. Respiration is the two types. Number one, aerobic respirations and anaerobic respirations. Aerobic respiration is the presence of oxygen respirations in living bodies. Okay, definition देखते हैं। Oxygen is used in respiration to break down the organic substrate. Organic substrate, carbohydrate, protein and fat. Okay, this reactions show, ठीक है, इसमें जो भी क्रिया हुई है उसमें हम देखते हैं ग्लूकोज है हमारे पास, एक कम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड है और उसके साथ O2 लगा हुआ है और ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये CO2, H2O और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर देखें तो जो एनारोबिक प्रोसेस है, इट्स मीन एनारोबिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अब्सेंस ऑफ O2, यह क्रिया जो होती है वहाँ O2 की आवश्यकता नहीं होती है। इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि लोअर अमाउंट ऑफ प्रेजेंस O2। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट मानते हैं। ओके, अब्सेंस ऑफ O2 मानते हैं। तो O2 इज नॉट यूज्ड इन रेस्पिरेशंस टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ओके, इसमें देखें तो ये है कि जो ग्लूकोज हमारे पास कम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स है वह जब ब्रेक डाउन होगा तो वह एल्कोहलिक एंड CO2 एंड लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो इस तरीके से अगर हम देखें तो टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस एंड रेस्पिरेशंस होता है। ओके, ओके, जो भी एनर्जी हमको मिलती है वह एनर्जी
एटीपी के फॉर्म में रहती है, एटीपी के फॉर्म में रहती है, ठीक है। यह जो प्रोसेसिंग होते हैं रेस्पिरेशन के विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हो पाते हैं, ये विदाउट एंजाइम के ये कंप्लीट नहीं हो सकते। एंड इट इज़ ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी फ्रॉम एटीपी, जो भी केमिकल एनर्जी होती है वह एटीपी के फॉर्म में मिलती है हमको। इट इज़ इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन इज नॉट रदर कैन नॉट यूज डायरेक्टली what is used to synthesis ATP, which is broken down where and wherever energy need to utilized. ATP act as an energy currency. ATP is the act of the cell currency, ये energy currency, it's an important case है ना। And this energy trapped in ATP utilized in various energies requiring process the organism। इस एनर्जी का हम यूज़ एनिमल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज द प्रेजेंस ऑफ द बायोसिंथेसिस टू अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये समझ पाते हैं कि रेस्पिरेशन इज द मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन लिविंग सच एज प्लांट एंड एनिमल्स बॉडी केस। ओके ओके।